Hello class, welcome to RR Online English classes for UGC NET. So today we are going to discuss the most important comedy of Shakespeare named, named Twelfth Night, and the subtitle is What You Will. Author William Shakespeare, and it is a comedy, romantic comedy and festive comedy. It was written around 1601 and 1602, and the first performance likely on 12th night. 12th night is a festival making the end of the Christmas. It means 6 January 1602, and the setting of the play is Ilaria, a fictional kingdom in Italy. So themes of the play: loves love is in many forms. Love appears versus passionate, unrequited love, foolish love, self-indulgent love, and genuine. Orsino's melancholy versus Voila's sincere love. Mistaken identity and disguise. Voila's disguise as Cesario drives the plot and causes comedic confusion. Madness, love is treated like madness. Malvolio's humiliation blurs real and false madness. Festivity and foolishness, the spirit of Twelfth Night emphasizes merrymaking, role reversal, and freedom from norms. Gender and sexual fluidity, Voila as Cesario creates ambiguity in attraction and, blurring traditional gender boundaries. Ambition and social climbing, Malvolio's dream of marrying Olivia reflects ambition, and he is punished comically. Motifs, letters and message which are exchanged frequently in the play. Madness and foolishness, love and ambition portrayed as forms of folly. Characters often act irrationally. Music and poetry, music is tied to love and longing. Disguise and role reversal, characters conceal identity, reflecting the festival spirit of Twelfth Night. Symbols, disguise. Voila's male attire represent both freedom and confusion. Challenges identity and gender roles. Ring, Olivia sends to Cesario, symbol of mistaken love and desire, show how emotions get misdirected. Yellow stockings, Malvolio's cross-garting, symbol of foolish self-deception and social ambition. Fast, fool, symbol of wisdom hidden in foolishness. Truth teller, beneath the comedy. The sea, symbol of chance, loss, and discovery. Shipwreck begins with the story, reunion happens at the end. Now, look at the character of the play. Chief, chief protagonist, Olivia. Olivia, who has a suitor, Orsino, who, who always keeps thinking about sorry, Olivia, but Olivia starts loving
page of Orsino, servant of Orsino, Cesario. But in fact, in actuality, Cesario is a woman named Voila, and Voila has a twin brother, Sebastian, who is just look like Voila. And Sebastian has a friend who saved him from the wreck of ship named Antonio, and Antonio is the enemy of Orsino. Olivia has an uncle named Sir Toby Belch, and Sir Toby Belch has a friend, Sir Andrew. So Sir Toby Belch wants Sir Andrew to be the fiancé and lover of Olivia, but Olivia considers Sir Andrew to be a fool. Olivia also has a maid servant who befools Malvolio, because Malvolio is an extremely arrogant type of person, and Malvolio is the steward, means manager of Olivia. So these are the important characters of the play. So look at the plot of the play. तो जो 12th नाइट है वो इलारिया नामक एक फिक्शनल किंगडम में ये सेट है। यहां का जो रूलर है ड्यूक ओर्सिनो, जो बहुत ही रोमांटिक है और बहुत पैशनेट है अबाउट ए वुमेन नेम्ड ओलिविया। मैंने अभी आपको ये बताया। ओर्सिनो हमेशा बस म्यूजिक में और ये पोएट्री में और ये संगीत में, ये कविताओं में हमेशा वो डूबा रहता है, और वो हमेशा अपनी अनरिक्रूटेड लव ओलिविया को अपने प्रेम के संदेश पहुंचाता रहता है। लेकिन जो उसकी अनरिक्रूटेड जो ये प्रेमिका है, वो उसका प्रेम प्रस्ताव बार बार ठुकराती रहती है। क्यों ऐसा? क्योंकि ओलिविया के फादर की ये डेथ हुए अभी 1 साल हुआ है, और उसका जो ये भाई है वो तो अभी हाल ही में उसकी मौत हुई है। तो वो हर समय अपने वो भाई और ये फादर की मौत के बारे में विलाप करती रहती है। तो जो ड्यूक ओर्सिनो की जो ये बिलवड है, तो उसने ये तय किया है कि वो 7 साल तक किसी भी पुरुष से प्रेम या शादी नहीं करेगी, और इसीलिए वो ओर्सिनो के प्रेम प्रस्ताव को बार बार ठुकराती रहती है। तो ये सीन बिल्कुल स्टार्टिंग का है, जब ड्यूक ओर्सिनो अपने वो म्यूजिशियन से ये बोलता है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव लेट्स प्ले ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये इस एक्ट की पहली कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर वोइला अपने ट्विन ब्रदर सेबास्टियन के साथ एक जहाज में यात्रा कर रही होती है, लेकिन उसी समय समुद्र में तूफान आ जाता है और जहाज डूब जाता है। लेकिन जो ये वोइला होती है वो किनारे पर पहुंच जाती है और ये सोचती है कि उसका जो भाई है, जो उसका ट्विन ब्रदर है, ये सेबास्टियन, वो मर गया है। तो जब वोइला अकेली लारिया नामक स्टेट में जो है, इस कंट्री में जब वो
पहुंच जाती है तो वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर और बहुत हेल्पलेस महसूस करती है। तो वो ये सोचती है वो क्यों ना इस कंट्री के राजा के पास जाए और वो कुछ काम वो मांगे, ताकि वो ताकि उसका जो ये जीवन है वो कुछ आगे कुछ बढ़ सके। लेकिन वो एक लेकिन वो राजा के पास एक वो लड़की के रूप में नहीं जाना वो चाहती थी, इसलिए वो एक लड़के का भेष बनाती है और अपना नाम रखती है सिजारियो। अब जो ये वोइला है वो एक एक लड़के का रूप वो ले लेती है और अपना नाम क्या रखती है, सिजारियो। ड्यूक ओर्सिनो की सेवा में चली जाती है और वो वहां पे ड्यूक ओर्सिनो की एक एक मेल बनकर, एक ये लड़का बनकर वो राजा की सेवा करने वो लगती है। ओर्सिनो भी वो सिजारियो को अपने एक ट्रस्टेड मैसेंजर और बहुत ही प्रिय वो एक नौकर के रूप में वो जो है कि सिजारियो को मानने लगता है। और जो ये वोइला है वो भी धीरे धीरे ओर्सिनो से प्रेम करने लगती है। अब लेकिन किंग ओर्सिनो को ये नहीं पता है कि जो उसका ये नौकर है वो एक वो लड़की है और उसका नाम वास्तव में क्या है कि वोइला। अब ओर्सिनो एक दिन अपने इस नौकर को, इट मींस कि वो सिजारियो को अपने ट्रस्टेड मैसेंजर के रूप में ओलिविया के पास भेजता है, ताकि वो उसकी तरफ से उसका प्रेम संदेश लेकर ओलिविया के पास वो जाए। अब लेकिन होता क्या है, ओर्सिनो जब सिजारियो को ओलिविया के पास अपने प्रेम का संदेश लेकर वो भेजता है, और जब ओलिविया सिजारियो से वो जब ये मिलती है और उसकी वो विनम्रता और उसकी इंटेलेक्चुअलिटी से बहुत इंप्रेस हो जाती है और वो उसके फेस के चार्म से भी बहुत इंप्रेस हो जाती है। ओलिविया उसी समय ओर्सिनो को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन वो उल्टा सिजारियो से प्रेम करने लगती है। अब यहां पे एक लव ट्रायंगल ये बन जाता है। क्या? ओर्सिनो लव्स ओलिविया एंड वोइला लव्स ओर्सिनो, बट ओलिविया लव्स सिजारियो। अब यहां पे एक लव ट्रायंगल ये बन जाता है। क्या? ओर्सिनो तो प्रेम किससे करता है? ओलिविया से। लेकिन जो ओलिविया है वो जब अपने राजा का संदेश लेकर ओलिविया के पास जाती है तो ओलिविया जो है वो वोइला से प्रेम करने लगती है। लेकिन जो ये वोइला है वो ओर्सिनो से वो पहले से ही प्रेम करना शुरू कर देती है। तो यहां पे एक लव ट्रायंगल ये बन जाता है। तो तो जब वोइला किंग ओर्सिनो का संदेश लेकर ओलिविया के पास जाती है तो ओलिविया उसी समय किंग ओर्सिनो के प्रेम को ठुकरा देती है और वो सिजारियो के प्रेम में पड़ जाती है। अब एक दिन क्या हो रहा होता है कि ओलिविया के ये घर पर फेस्टे, सर टोबी बेल्च और उसका ये दोस्त मिस्टर एंड्रयू वो पार्टी कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो मिस्टर एंड्रयू है वो सॉरी जो ये मिस्टर एंड्रयू है इसको सर टोबी ये बेल्च ही इस घर में ये लाया है, और वो इसलिए लाया है क्योंकि वो अपनी भतीजी
ओलिविया की शादी अपने इस दोस्त मिस्टर एंड्रयू से कराना चाहता है, लेकिन जो ओलिविया है वो मिस्टर एंड्रयू को बिल्कुल बेवकूफ मानती है। तो एक दिन होता क्या है कि ओलिविया का जो ये चाचा होता है, सर टॉबी बेल्च, वो बहुत ही कुछ एक मनमोजी टाइप का एक व्यक्ति है, और वो और उसको कि शराब पीने का बहुत शौक है। तो एक दिन वो आपस में एक पार्टी कर रहे होते हैं। इतने में ओलिविया का जो एक मैनेजर है मेलवोलियो, वो वहां पे आ जाता है और उन सबको वो धमकाने की कोशिश करता है कि देखो जो मैडम है वो अपने फादर को लेके और वो अपने ये भाई को लेके एक विलाप कर रही है, और ये अच्छा नहीं है कि वो तो शॉक्ड में है, वो तो एक ये दुख में है, और तुम यहाँ पे की पार्टी कर रहे हो। अब इतने में ये सब को सुनकर जो ओलिविया की जो एक मेड सर्वेंट होती है, उसका नाम होता है मारिया। उसका नाम होता है मारिया। अब मारिया जो है वो पहले से ही मेलवोलियो को पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेलवोलियो बहुत एरोगेंट टाइप का एक आदमी है, जो मैनेजर है। किसका? ओलिविया। जो मैनेजर है ओलिविया का। तो मारिया मेलवोलियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो ये कहती कि आज तो मैं इस मेलवोलियो को सबक सिखा के रहूंगी। तो वो क्या करती है, वो एक ट्रिक खेलती है। ट्रिक क्या खेलती है? वो अपनी मैडम यानी कि ओलिविया की राइटिंग में एक लेटर मेलवोलियो के कमरे में प्लांट कर देती है, और उस लेटर में ये वो लिख देती है कि अगर तुम येलो स्टॉकिंग्स पहनकर मेरे सामने आओ और उन येलो स्टॉकिंग्स के ऊपर तुम क्रॉस गार्टर्स को पहनो। क्रॉस गार्ड होता है कि जैसे कि जो जो ये घुटने तक जो ये मोजे होते हैं, तो उनको बोलते हैं क्रॉस गार्टर्स। अगर तुम येलो स्टॉकिंग्स और उनके ऊपर तुम क्रॉस गार्टर्स को तुम पहन के आओ, तो और तुम बिल्कुल एक सोल्जर की तरह, एक आर्मी ऑफिसर की तरह अगर तुम मेरे सामने आओ, और अगर तुम हंसते रहो मेरी तरफ, तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी। अब ये लेटर को देखकर जो मेलवोलियो है उसके मन में लड्डू फूट जाते हैं, और वो सोचता है कि ये वाकई में जो ये लेटर है वो मैडम ने हे को भेजा है। अब वो बिल्कुल ऐसे ही इन्हीं 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 कपड़ों में वो मैडम के सामने आ जाता है। अब इस सीन को देखकर सब मेलवोलियो का मजाक बनाते। अब जो मैडम होती है यानी कि जो ओलिविया होती है, वो मेलवोलियो को जेल में डालने का आदेश देती है। उसे उसे ये लगता है कि ऐसा लगता है कि जो ये मेलवोलियो है वो कुछ पागल वागल हो गया है और इसको जेल में डालने की आवश्यकता है। तो वो आदेश देती है कि इस मेलवोलियो को जेल में डाल दिया जाए। अब मारिया की इस ये प्रैंक से मेलवोलियो का बेचारे का ये हाल हो जाता है। इतने में इसके बाद एक दिन एक एक बार फिर जो ये वोइला है वो इस जारियो के वो भेष में ओलिविया से वो मिलने के लिए आती है, और जब ओलिविया सिजारियो को वो देखती है तो वो हर
हर व्यक्ति को अपने पास से दूर कर देती है ताकि वो जो है कि ये वोइला से इट मीन्स कि वो सिजारियो से अकेले में बात कर सके और उससे अपने प्रेम का इजहार कर देती। लेकिन जो सिजारियो होता है वो ये कहता है आई एम नॉट व्हाट आई एम, कि जो तुम सोच रही हो वो मैं हूं नहीं। बट ओलिविया वांट्स टू मैरी हिम, लेकिन जो ओलिविया है वो सिजारियो से शादी करना चाहती है। और जब वो सिजारियो वहां से वो जाता है तो जो ओलिविया है वो उससे ये कहती है कि तुम वापस लौट कर जरूर आना क्योंकि मैं तुमसे अब प्यार करने लगी हूं। अब इतने में इस कंट्री में, इलारिया कंट्री में, दूसरे शहर में जो ये वोइला का जो ट्विन ब्रदर होता है वो अपने एक दोस्त एंटोनियो के साथ उस शहर में आ जाता है, उस कंट्री में आ जाता है। और जो एंटोनियो है, क्योंकि उसी ने ही सेबास्टियन की जान ये जो है तो ये बचाई थी, लेकिन जो सेबास्टियन है उसके साथ एक परेशानी है। जो ये सेबास्टियन है वो ड्यूक ओर्सिनो का बहुत पहले से ही वो दुश्मन है। तो ये जब सेबास्टियन इस कंट्री में आता है तो उसका जो वो दोस्त होता है एंटोनियो, उसको ये गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वो जब उसको ये वोइला और वो जब ये वोइला का और वो जब ये वोइला को वो देखता है तो ये सोचता है कि ये सेबास्टियन ही है, क्योंकि उसने एक लड़के का रूप धारण कर रखा था। तो एंटोनियो को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो ये सेबास्टियन होता है वो जब मार्केट में वो घूम रहा होता है तो उसको ओलिविया का एक नौकर, पेस्ट, एक फूल, जो ओलिविया का जो ये फूल होता है वो जब सेबास्टियन को वो देखता है तो वो उसको मास्टर्स, वो जो है कि सिजारियो कहकर वो पुकारता है। अब जो ये सेबास्टियन है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो आदमी है वो थोड़ा कुछ पागल वागल है क्या, ये मुझे कैसे जानता है और ये मुझको ये जो है कि सिजारियो कहकर क्यों पुकार रहा है। और वो ये भी सोचता है कि जो इसके साथ ये सब जो ये लोग हैं, सर एंड्रयू और जो जो ये है कि टोबी, ये मुझको बार बार घूर क्यों रहे हैं। अब क्योंकि ऑलरेडी सर टॉबी ये बेल्च ने मिस्टर एंड्रयू को कि सिजारियो के ये खिलाफ युद्ध करने के लिए उसे भड़का रखा था। तो जो सर एंड्रयू होता है वो ये सेबास्टियन को युद्ध के लिए चैलेंज करता है। अब लेकिन ये सेबास्टियन सोचता है कि ये जो है व्यक्ति वो मुझसे युद्ध करना क्यों चाहता है, लेकिन मैं तो उससे युद्ध करना नहीं चाहता हूं। लेकिन सर टोबी मिस्टर एंड्रयू को बार बार सेबास्टियन से युद्ध करने के लिए उकसाता है। वो उसको इसलिए उकसाता है क्योंकि वो उसके मन में ये बात डाल देता है कि देखो जो ओलिविया है वो इस व्यक्ति से, इट मीन्स वो जो है कि सिजारियो से प्यार करने लगी। अगर तुम इस व्यक्ति को युद्ध में हरा दोगे तो फिर जो ओलिविया है वो तुमसे प्रेम करने लगेगी। तो जब मिस्टर एंड्रयू सेबास्टियन के साथ युद्ध करने वो लगता है तो इतने में ओलिविया आ जाती है और वो मिस्टर सर टोबी यानी कि अपने चाचा के ऊपर वो बहुत गुस्सा होती है और वो
सिबास्टियन से अकेले में बात करने वो लगती है और ये सोचती और वो उससे एकदम शादी का प्रस्ताव रख देती है। अब जो ये सिबास्टियन है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि जो ये महिला है वो मुझे पहले से जानती है और ये मुझसे शादी का प्रस्ताव भी रख रही है। तो जो ये सिबास्टियन है वो भी सोच लेता है कि चलो ठीक है, इतनी खूबसूरत ये महिला मुझसे शादी करने के लिए वो ये बोल रही है, तो वो भी उससे शादी कर लेता है। और जब ये बात ड्यूक और सीनो तक पहुंचती है कि ओलिविया ने शादी कर ली है एक आदमी से, जो कि जो है कि ये सिजारियो है, अब यहां पे सीक्रेट का जो ये है वो खुलासा हो जाता है। तो जब ये सिजारियो, इट मींस जब ये वोइला को, जब ये जो है कि सिजारियो वो जब अपने वो भाई को वो देखती है, तो दोनों भाई बहन अपने राज को सबको बता देते हैं। अब किंग ओरसीनो ये सोचता है कि जो ये व्यक्ति जो मेरा अब तक सेवक बनकर मेरी सेवा कर रहा था, तो ये कोई और नहीं, ये तो एक महिला है और ये महिला वाकई में बहुत खूबसूरत है। और ये बात महसूस करता है कि जो ये वोइला है वो मुझे बहुत पहले से ही वो चाहती है। तो अब क्या होता है कि ड्यूक और सीनो भी ये वोइला से शादी कर लेते हैं और ड्यूक और सीनो के साथ साथ और जो है कि ओलिविया के साथ साथ जो ओलिविया की जो नौकरानी होती है मारिया, वो ओलिविया के अंकल सर टोबी से शादी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लास्ट में 3 शादी हो जाती है। लेकिन जो मेलवोलियो है, जब उसको इस बात का ये पता लगता है कि उसको बेवकूफ बनाया गया है, तो वो कसम खाता है कि वो इन सब से जरूर बदला लेगा। तो यहां पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस प्ले के इंपॉर्टेंट डायलॉग्स की। तो द फर्स्ट डायलॉग, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव लेट्स प्ले ऑन। ये जो डायलॉग वो ड्यूक और सीनो बोलता है स्टार्टिंग में कि अगर म्यूजिक ही प्रेम का खाना है तो इसको बजाते रहो, यानी कि तो इस संगीत को तुम मुझे कि सुनाते रहो। आई एम ऑल द डॉटर्स ऑफ माई फादर्स हाउस एंड ऑल द ब्रदर्स टू। ये जो एक डायलॉग वो ये वोइला बोलती है, ये जो है कि वोइला बोलती है, वोइला disguised as Cesario speaks to Orsino. Better a witty fool than a foolish wit। ये डायलॉग जो है फेस्टे बोलता है, जो ओलिविया का एक ये क्लाउन है। फेस्टे responds to Olivia's conversation about wit. Better a witty fool than a foolish wit. Some are born great, some achieve greatness and some have the greatness thrust upon them। ये जो है डायलॉग वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायलॉग मारिया लिखती है इसके लिए, मेलवोलियो के लिए। इसकी राइटिंग में ओलिविया की राइटिंग कि कुछ महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ पर महानता थोपी जाती है। लव सॉट इज गुड बट गिवन अनसॉट इज बेटर। ये जो है डायलॉग वो बोलती है ओलिविया कि जो लव हम, अगर कोई ये लव हमें ये मिल जाता है, अगर हम किसी को ये पसंद करते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन अगर कोई प्रेम ऐसा हो जो हमें बिना मांगे ही मिल जाए तो वो बेस्ट है। आई विल डू माई बेस्ट टू woo your lady, get a powerful strife, whosoever I woo myself would be his wife। ये जो डायलॉग है वो वोइला बोलती है जब वोइला वो जो है कि सिजारियो के वो भेष में ओरसीनो
कि जो ये प्रेमिका है ओलिविया को, वो जब मैसेज वो देती है तो वो अपने प्रेम की भावना को खोलती है। आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, कि मालिक मैं आपकी जो महबूबा है मैं उसको आपके लिए आकर्षित करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। This fellow is wise enough to play the fool and do that well craves a kind of wit. ये डायलॉग भी वोयला बोलती है, किसको बोलती है? वो जब सिजारियो के वो केस में होती है। तो जो ये वोयला है वो इस डायलॉग में फेस्टे, जो ओलिविया का जो ये क्लाउन है उसकी चतुराई की बहुत प्रशंसा कर रही है। This fellow is wise enough to play the fool and to do that well craves a kind of wit. Oh, time, thou must untangle this. Not I, it is too hard a knot for me. Untie. ये डायलॉग भी वोयला बोलती है। ये डायलॉग भी कौन बोलती है? वोयला। वोयला लेमेंट्स हर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। जब वोयला लव ट्रायंगल में फंस जाती है तो ये इस समय ये उस समय इस डायलॉग को ये बोलती है। ओ टाइम दो मस्ट अनटेंगल दिस, नॉट आई, इट इज टू हार्ड ए नॉट फॉर मी अनट्राई। आई लेफ्ट नो रिंग विद हर, व्हाट मीन्स दिस लेडी। ये जो डायलॉग है ये वोयला बोलती है जब ओलिविया वोयला को अपने एक मैसेंजर के माध्यम से अंगूठी पुछवाती है, ये बहाना करके कि ये जो आया था अभी इसको कि ये अंगूठी यहाँ पे वो रह गई है। लेकिन जो ये वोयला है यानी कि जो ये सिजारियो है वो तो वो ये बोलती है आई लेफ्ट नो रिंग विद हर, मैं वहां पे कोई नहीं। दिस गाइज आई सी दो आर्ट विकेडनेस वेयर इन द प्रेग्नेंट एनिमी डज मच। ये डायलॉग भी वोयला बोलती है। वोयला रिफ्लेक्ट्स ऑन द कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय हर मेल डिस्गाइज। वो जब अपने आदमी के भेष से पागल हो जाती है, वो कहती है कि जो ये मैंने भेष बदल रखा है ये बहुत ही अब तो इसने मुझे बहुत ज्यादा एक बैड सिचुएशन में ये जो है तो ये डाल दिया, इसने मेरे लिए बहुत सारी ये जो है कि परेशानियों को खड़ा कर दिया। Fulrisa does walk about the orb like the sun, it shines everywhere. ये डायलॉग फेस्टे बोलता है। फेस्टे comments on the ubiquity of folly in the world. Foolishness exists in everyone and all places. My masters, are you mad or what you are? Have you no wit, manner, nor honesty, but to gabble like tinkers at this time of night? ये डायलॉग मेलवोलियो बोलता है। मेलवोलियो जब सर टोबी को उनकी पार्टी के दिन धमकाता है। मेलवोलियो disapproves of rowdy foolish behavior. My master, are you mad or what you are? ये तो जो है कि रिपीट हो गया। I do perceive here a divided duty. ये डायलॉग वोयला बोलती है जब वो सिजारियो के भेष में होती है। She expresses her dilemma between loyalty to Orsino and her love for him. वो जब ओर्सिनो के एक वफादार नौकर के रूप में और एक प्रेमिका के रूप में फंस जाती है। वोयला इज जब जो ये वोयला होती है वो जब when she is torn between service and personal desire. I will be revenged on the whole pack of you. मेलवोलियो जब ये डायलॉग ये बोलता है तो वो लास्ट में ये बोलता है कि मैं तुम सबसे बदला लूंगा। Journey ends in lovers meeting, every wise man's son doth know.
वोइला ये लास्ट में ये एक डायलॉग को जो है तो ये बोलती है जो जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, तो इसका जो अर्थ है वो ये है, ट्रू लव लीड्स टू यूनियन, द एक्सपेक्टेड हैप्पी एंड। अब देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द टाइटल ट्वेल्थ नाइट रेफर्स टू, ये जो प्ले है ट्वेल्थ नाइट, ये इसका जो ये टाइटल है वो किस ओर इशारा करता है? ए फेस्टिवल ऑफ मिस रूल एंड मिस मैरी एंड मैरी मैन। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट? मैंने बताया है, और व्हाट यू विल। Who speaks the opening line of the play? If the music be food of love, let's play on Duke Orsino। ये लाइन है मैंने अभी। Which character disguises herself as a boy named Cesario? तो आपको मालूम ही होगा, वोइला। Who survives the shipwreck with वोइला? उसका भाई सेबास्टियन। Who plots to trick Malvolio into believing that Olivia loves him? Maria, Sir Toby Belch and Fabian। Malvolio is persuaded to appear before Olivia in close gartered yellow stockings, कि वो अगर पीले सॉक्स पहन के आ जाए क्लोज गार्टर्ड के साथ तो वो उससे प्रेम करे। Who is the licensed fool in the 12th night fest? The comic situation in the play mainly arises due to Voila and Sebastian being twins. Who marries whom at the end of the 12th? Orsino शादी करती है ये वोइला से, और जो सेबास्टियन है वो शादी करता है ओलिविया से, और मारिया शादी करती है सर टोबी से। Which theme is centered to 12th night? Disguise, love and mistaken identity, ये इसकी सेंट्रल थीम है। Who says better a witty fool than a foolish wit? Festive. How does Malvolio react at the end of the play after realizing the trick? He swears revenge, वो बदला लेने की ठानता है। Antonio is arrested for his past enmity with Orsino, क्योंकि जो एंटोनियो होता है वो ओर्सिनो का पुराना दुश्मन होता है, तो इसीलिए वो ओर्सिनो को वो गिरफ्तार करा देता है। Who says, make me a willow cabin at your gate and call upon my soul within the house? ये जो डायलॉग है वो कोयला बोलती। Who challenges Cesario? It means कोयला to a duel, वो कि जो ये सिजारियो है वो युद्ध के लिए किसको चैलेंज करता है? सर एंड्रयू को। What does Olivia fall in love with? Voila's eloquence and charm, कि जो ओलिविया है वो वोइला की किस बात से इंप्रेस होकर उससे शादी करने की बात करती, उसके ये डायलॉग से और उसके चार्म से इंप्रेस होकर। एलोक्वेंस बोलता है कि डायलॉग, विटी डायलॉग। Some are born great, some achieve greatness and the some are have and the some have greatness thrust upon। ये डायलॉग कौन बोलता है? ये मारिया बोलती है मैलवोलियो के लेटर में। What is Malvolio's role in Olivia's household? Malvolio कौन होता है ओलिविया का? वो उसका वो मैनेजर होता है, स्टुअर्ड होता है। Which of the following characters marry at the end? ये जो पहले भी आया था। What is dramatic significance of Voila's disguise as Cesario? To serve Orsino and create mistaken identity. What does the festival 12th night traditionally celebrate? The end of the Christmas season with rivalry and misrule। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो
खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।